Honorable Minister for Environment, Forest, Climate Change, Respectable Sir, officers of MOF and CC, and my dear colleagues and our team. Good afternoon to all of you. It's a great privilege to all of us to be here on the event of World Laboratory Animals Day. And it can be judged by the way its animals are treated, unquote, which echoes the spirit and mission of CPC-SCA. The seed for creating the Gitanjali, duly nurtured by our additional secretary and joint secretary and vice chairman, sir, now blossomed by our honorable minister. To start the program, I would now request our Thank you, sir. Thank you, sir. I would now request our dear minister to launch the website of the CPCSCA. अब कैची भी माउस की हो गई। I request all of my colleagues to give a big clap. ताली बजाने के लिए Yeah, please. So our dream has come true, sir, today. Thank you very much, and we feel honored for having you here. Days. Now, this is just to facilitate smooth functioning of this division. The need for online processing the work of CPC was felt, so that this division can successfully and extensively work for the laboratory animal welfare without hampering the research and education aspects associated to it. Now, our objectives for bringing this online thing, to provide online facilities to the establishment for registration and renewals, make it easy to use for the registered establishment by providing latest updates regarding the CPC-SCA, maintain the database for easy retrieval and exchange, facilitate quick, easy communication of CPC-SCA with CPC nominees, and the establishments involved in the laboratory animal experimentation. Now, our homepage look something like this. In this homepage, we are giving facilities, various facilities we are doing it. You could see this, online services, renewal of registration, reconstitution, revision, all those which we are doing so far on the paper one, we were doing the set of expertise, they process it, and they mark it to the next admin. The website. Now I would request our honorable minister to address the gathering, sir. मुझे बहुत खुशी है हेम पांडे जी ने मुझे बुलाया, सभी अधिकारी जो इस काम में लगे। मनुष्य, समाज, सृष्टि, प्राणी, फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, ये सब मिलके चराचर सृष्टि बनती है और चराचर सृष्टि जो है एक दूसरे के काम में आती है। तो जैसे कुछ प्राणी हमें प्रोटीन देते हैं, खाते हैं लोग, मनुष्य भी उनको खिलाता है और बहुत सारे काम है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे में प्राणियों का उपयोग जो एक होता है कि टेस्ट करने के लिए कि मनुष्यों पर किसी भी दवा का प्रयोग करने के पहले उसको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन पहले उसमें बहुत क्रूरता होती थी। जैसे प्राणियों को कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है और प्राणी कैसे भी मारो काटो, ऐसी तो स्थिति नहीं है और इसलिए बदली हुई संवेदना का यह परिचय है। बदली हुई संवेदना में जो प्राणी प्रयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं उनका भी कुछ ख्याल रखने की जरूरत है, ये भावना है और वो ख्याल रखते हैं।
वो जो औषधि कंपनियां होगी या जो भी प्रयोग करने वाली कंपनियां होगी, जैसे उन्होंने कहा 350 यूजर एजेंसीज है, तो ये जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उसको एक विहित संहिता में बिठाया है कि भाई आपको प्रयोग करने हैं, जरूरी है, मानव कल्याण के लिए जरूरी है, लेकिन कम से कम प्राणियों पर प्रयोग हो और जो होंगे उसमें प्राणियों का ख्याल भी हो। तो ये दोनों विचार, ये नई संवेदना है 21वीं सदी की और अच्छी संवेदना है। ये पहले भी ये थी, बीच में लुप्त हुई थी, फिर से वो आई है। तो इसलिए इस संवेदना को लेकर जिस तरह का आज कार्यक्रम किया है और ये सारा एक कोड प्रोटोकॉल तैयार किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इसमें और एक नया जोड़ा है महत्वपूर्ण कि एक वेबसाइट लॉन्च की है जिससे बार बार लोगों को ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा। वो ऑफिस में आते हैं या कहीं दूसरी जगह है, एक जगह भेजते हैं, फिर हमारे लोग पत्राचार करते हैं कि आपने ये नहीं भेजा, वो नहीं भेजा, फिर वो लोग फिर लिखते हैं। एक ऑफिस खेल होता है, वो सीरियल जैसा, वो नहीं हो और लोग सीधा ऑनलाइन भरे। कुछ कमी रहे तो जैसे पासपोर्ट का ऑनलाइन हो गया, बाकी अनेक सेवाओं का ऑनलाइन हो गया, तो इसमें अगर आप कोई गलती रहती है, एक आध चीज नहीं आपने भरी है, तो तुरंत वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होता तब तक, जब तक कि आप पूरा डिटेल्स नहीं भरोगे। तो ये हमने ईसी के लिए शुरू किया, एफसी के लिए शुरू किया, जूस के लिए शुरू किया, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए शुरू किया। तो अब बचा था यही एक कि ये 350 एजेंसीज है, देश भर में है, काम अच्छा कर रही है, उनको प्रोटोकॉल के तहत बार बार ऑफिस ना आना पड़े, तो ये भी एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो। और इसलिए ये ऑफिस की वेबसाइट आज शुरू हुई है जिसके तहत लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें कर सकेंगे। मैंने अभी चर्चा की, इसमें कहा गया कि हर 3 साल में रिन्यूअल करना पड़ता है। अब ये भी देखो मानसिकता का विषय है, क्यों 3 साल में रिन्यू करना पड़ता है? अगर एक एजेंसी है, कोई गलत काम करेगी तो रिव्यू करने का आपको कभी भी अधिकार है, क्यों 3 साल के बाद आपके पास आएंगे, क्यों रिन्यू करेंगे? एक बार वो रजिस्टर हुए, उनका प्रोटोकॉल के तहत वो काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, तो 10-20 साल उनका क्यों नहीं रहेगा? हम इस दिशा में तुरंत निर्णय करेंगे और कम से कम 10 साल की उनकी रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा, तो उनका प्रोटोकॉल रहेगा, ये भी हम सुधार करेंगे। जितना यानी कोई, मैंने पूछा अभी कि 3 साल का, जैसे मैंने सुना कि हर 3 साल में रिन्यू करना पड़ता है, भाई क्यों? 3 साल में क्या बदलता है? अगर वो कंपनी है, वो कोई संस्था है, वो आपके नियमों का पालन कर रही है, तो बार बार लोगों को आपके यहाँ आना ये बंद करना है मुझे, और इसलिए ये कम से कम 10 साल का होगा। हम इसका ऑफिशियल निर्णय करेंगे जल्दी, 10-15 दिन में इसका सर्कुलर भी जारी करेंगे, तो 10 होगा या 15 होगा ये हम तय करते हैं, लेकिन ये मिनिमम 10 ईयर्स होगा रिन्यूअल पीरियड। एक ये ऑनलाइन से हर साल मैंने पूछा, इतने 350 संस्था है, लेकिन एप्लीकेशन कितने आते हैं? 150 ही एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो वो ऑनलाइन होगा तो वो प्रोसेस करने वालों को भी ठीक रहेगा और भरने वाले को भी ठीक रहेगा, तो कोई अपारदर्शिता नहीं होगी, पारदर्शिता रहेगी और उसमें वो सारा ख्याल करेंगे। तीसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण है कि हम तो उस दिशा में जाना चाहेंगे कि जहां प्राणियों का भी उपयोग न करना पड़े, लेकिन आज जरूरत है तो ये नहीं कह सकते कि आज जरूरत नहीं है। तो जो जरूरत है, और एक दूसरे के लिए, जैसे मैंने कहा सृष्टि में हर एक दूसरे के उपयोगी होता है, तो वैसे ही हम निश्चित रूप से उसको करेंगे। और ये एक क्रूएल्टी टू एनिमल, परसों मैंने एक सिनेमा देखा, मुझे पता नहीं था कि अभी तो सर्कस बंद हो गई, प्राणियों को उसमें यूज करना बंद हो गया। फिर दूसरा प्राणियों को सिनेमा में दिखाना वगैरह, ये भी बहुत सारा पहले बहुत आसान था। हाथी मेरे साथी में, हाथी का ही काम ज्यादा अच्छा था, ऐसा लोग कह रहे थे। तो ऐसा था, लेकिन अब ये बदल गया। तो परसों मैंने देखा एक फिल्म में कि सारे प्राणी का बहुत सारे दृश्य थे, लेकिन वो सारे कंप्यूटर से तैयार हुए थे।
यानी मूल पिक्चर का मूल प्राणी का शूटिंग करते होंगे, लेकिन उसके फिर आगे के जो सारी करने का काम है वो एक्चुअल प्राणी नहीं कर रहे, वो कंप्यूटर से तैयार होता है। तो ये भी विज्ञान की तरक्की है। तो हम चाहेंगे कि प्राणी जंगल में रहे, मनुष्य बस्ती में रहे, एक दूसरे का दोनों का जीवन अलग अलग होए और चले, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और इसलिए ये एक अच्छी शुरुआत हमने की है। अब एक मुद्दा आता है कि जैसे जगह जगह प्राणियों का तकलीफ बहुत होती है, जैसे अब दिल्ली में इतने साल से बंदरों की तकलीफ है और कोई भी उसको सुलह नहीं हो सकता, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता, ये मैं विश्वास ही नहीं कर सकता, लेकिन है आज स्थिति। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम सभी संबंधितों से चर्चा करेंगे इसमें। लेकिन हमने बाकी जगह जहाँ किसानों को बहुत प्राणियों की तकलीफ होती है, जहाँ कुछ प्राणियों से, तो उसके बारे में भी हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो उसमें भी जो जरूरतमंद परमिशन देनी होगी वो देंगे, ताकि कानून भी चले, किसान भी चले, मनुष्य भी चले, प्राणी विश्व भी चले, एक बैलेंस में चले, यही हमें देखना है। और इस दिशा में आज का ये वेबसाइट का लॉन्च और उसमें ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होना, और जैसे मैंने कहा हम इसको पारदर्शिता भी करेंगे और कम से कम ऑफिस और इंस्टीट्यूट का इंटरेक्शन हो, लेकिन बाद में वो प्रोटोकॉल के तहत काम करें, तो प्राणियों पर क्रूरता भी ना हो। ये दोनों देखने का एक अच्छा काम आज शुरू किया है। इसके लिए मैं सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, और यही काम आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Minister Sir, for the wonderful address which has given a lot of motivation to all of us. Has been arranged outside the auditorium. I request all of you to join us for the tea. Thank you all. देंगे सोमवार या मंगलवार को। हाँ अच्छा सर, अभी आप मंकी मीनेज की बात कर रहे थे कि आप लोग उस पर देखेंगे, बहुत सही, बहुत बड़ी समस्या है सर दिल्ली के लिए। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके बहुत सारे पहलू है, तो इसमें काम करने वाले लोग भी है। एनजीटी ने इस पर ऑर्डर भी दिया था, और बंदरों को भी तकलीफ न हो और लोगों को भी तकलीफ न हो, इसका रास्ता कैसे निकले, इसका कुछ न कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो संबंधित है इनकी एक बैठक बुलाएंगे, फिर बाद में उस पर कुछ निर्णय होगा तो बाद में बताएंगे। सर, दिल्ली में 2 बायोडाइवर्सिटी पार्क सफलतापूर्वक चल रहे हैं। देश के बाकी शहर, बड़े बड़े शहरों में भी बायोडाइवर्सिटी पार्क बने हैं। हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले सप्ताह मैं उदयपुर गया था, 2 सप्ताह पहले, और उदयपुर में हमने ये किया है, बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है, सज्जनगढ़ बायोडाइवर्सिटी पार्क, और बहुत ही अच्छा। तो सभी जगह जैविक विविधता की लोगों को परिचय हो और प्राणी और चराचर सृष्टि का दर्शन हो एक जगह, इसलिए ये काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसका ये हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। There is a request from Tamil Nadu government to you to take away bulls from the performing animals. Will you do any favor? See, it is the court verdict which has come by the Supreme Court. So after studying carefully, we are also preparing a scientific case, because I believe that religious and cultural practices should be allowed to be continued. But also it is necessary to ensure that there is no cruelty to animals. And what is the via media is what is we are discussing, and will come out with final solution soon. सर, आम आदमी पार्टी के नेता टीवी पर रोते हुए कहे कि इस मामले पर राजनीति न करनी चाहिए। नहीं, लेकिन राजनीति तो यानी किसान को आत्महत्या के लिए उकसाकर आत्महत्या होने के बाद भी अपनी रैली जारी रखना और करना, ये राजनीति थी। राजनीति हमने नहीं की, राजनीति जिन्होंने रैली की और जो उसके मरने के लिए जिम्मेवार है उन्होंने राजनीति की है। किसान का ऐसा मजाक और किसान को एक मोहरा बनाना अपने राजनीति के लिए बहुत गलत बात है। सर, लोटस टेम्पल भी लगातार पीला पड़ता जा रहा है, उसके आसपास की इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन कर रही हैं, इस पर क्या स्टेटमेंट? नहीं, उस पर मैं टीम तुरंत भेजूंगा अगर सचमुच में ऐसा है तो, और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे।
Sir, have you received any report from Karnataka government regarding their dam which is going to build soon, which they are No, announcing?